Good morning to all the teachers and the students. Today I am Krish of class 12. I am here to give some tips about the advantages and disadvantages of solar power. Firstly, the first advantage of solar power are solar energy can reduce your home electricity bill. The second is solar panels have low maintenance cost. Third is solar energy can generate electricity in any climate. Fourth is solar energy is a renewable energy source and reduces carbon emission. Solar power can get your money back through solar renewable energy credits. Home and solar panels installed can improve home value. Now the disadvantages. The high initial cost of installing panels. The solar energy source is expensive. Solar doesn't work of every roof type. Solar energy panels are dependent on sunlight. Hence, it can be concluded that solar panels are equally advantages and disadvantages. Good morning teachers and all my dear friends. Myself Shreya from class 11th of Stream Arts. Today I am going to tell you few words on why should we use solar energy. Renewable energy produces fewer greenhouse emissions and less air pollution. It can also help reduce renewable energy is cheaper to follow in many countries and can create jobs in manufacturing, installation and other areas. Renewable energy facilities are also large upfront investments too, but they can operate at a low cost. Teachers and all my dear friends, today my topic on save energy, importance of energy conservation. Environmental protection as it reduces greenhouse gas emission. Second, resource conservation as it preserves valuable resources. Third, economic benefits can save money bills. Fourth, improves quality of life by making systems perform better and reduce energy wastage. Thank you. Good morning all the respected teachers and dear students. I am Rohit from class 12. I am here to give some tips about do's and don'ts of energy. First, some do's. Switch off lights not in use. Save electricity. Use alternative source of electricity. Solar energy panels. Use CFL bulbs and lights. Become eco-friendly. Observe Earth hour. And now some don'ts. Avoid appliances. Do not use waste. Do not neglect e-faults. Do not cut trees. Do not trade e-waste. जैसे बच्चों हमने आज जो है समर कैंप लगाया सेव एनर्जी के ऊपर, कुछ बच्चों ने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर बोला, कुछ ने उसकी इम्पोर्टेंस बोली, रिन्यूएबल सोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। कुछ बच्चों ने एनर्जी को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए डूज एंड डोंट्स उसके बारे में बताया। कुछ बच्चों ने सोलर जो पैनल्स हैं उसके एडवांटेज भी बताए, साथ में डिसएडवांटेज भी। अब हमारा जो एक लास्ट का टॉपिक है इसमें जो सेव एनर्जी का समर कैंप है, उसमें जो टॉपिक है वो है कि जो स्कूल है उसमें हम एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं। देखिए हमारा जो स्कूल है वहाँ पे हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। किसी भी घर
देखिए वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज भी कम है, एनर्जी कंजप्शन भी कम है, लेकिन जो स्कूल है वहाँ पे स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और एनर्जी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है। किस तरह से एनर्जी कंजप्शन है, अगर गर्मी जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो कूलिंग करने के लिए जो फैन हैं, ठीक है, या दूसरे अप्लाइंसेज हैं, तो वो भी एनर्जी जो है कंज्यूम करते हैं, लाइटिंग के लिए भी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो स्कूल है उसमें कैसे एनर्जी को सेव किया जा सकता है, एनर्जी वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सकता है। सबसे पहली बात, जो स्टाफ या स्टूडेंट स्कूल के आसपास के दायरे में रहते हैं, ठीक है, जो वॉकिंग डिस्टेंस के दायरे में है, अगर वो बच्चे साइकिलिंग करके आए और जो स्टाफ है वो भी थोड़ा वॉकिंग करके सुबह आए, थोड़ा टाइम पे निकले घर से और थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है तो वॉकिंग करके आए, या बच्चे साइकिलिंग करके आए, वो एनर्जी बहुत सेव हो सकती है जो वॉकेबल डिस्टेंस है, ठीक है। दूसरी बात हमने की कि जब भी जैसे अभी दिन है, ठीक है, अभी जो है आप देख रहे हो सोलर जो एनर्जी है वो हमें भरपूर मिल रही है, लाइट जो है बहुत ज़्यादा एविडेंस की मिल रही है, तो इस एविडेंस फॉर्म में जब हमें लाइट मिल रही है तो हमें आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत नहीं लगती है, या अगर कहीं लगती भी है, कहीं अंधेरा है, कमरे में शैडो है, तो मिनिमम यूज़ होना चाहिए। आपने भी कोशिश करनी चाहिए कि जो सोलर लाइट है सन की, ठीक है ना, उसको हम दोपहर के समय उसका ही ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो आर्टिफिशियल लाइट है उसको कम यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको पता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदते हो, ठीक है, उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी होता है उसका एक थंडरबोल्ट का सिंबल बनाया होता है, एनर्जी सेविंग, और साथ में स्टार रेटिंग्स भी होती हैं। तो स्कूल में भी जैसे आप घर में लेते हो ना कोई अप्लायंस में 3 स्टार रेटिंग होती है, 2 स्टार 5 स्टार रेटिंग वाला तो बेहतरीन है एनर्जी सेविंग के लिए, तो स्कूल में भी हम ऐसे अप्लायंसेस लें, चाहे वो कूलिंग के लिए हो समर में, या विंटर में हीटिंग के लिए हो, जो एनर्जी रेटिंग वाले हो और जो एनर्जी सेव कर सके, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो स्कूल में जो है, ठीक है ना, मैंने बोला समर में अभी कूलिंग के लिए एनर्जी यूज हो रही है, लेकिन उसके साथ अगर आप देखोगे कुछ स्कूल में ICT लैब्स भी हैं, स्मार्ट बोर्ड्स भी हैं, लैपटॉप्स कंप्यूटर्स भी हैं, ठीक है ना, तो वो अप्लायंसेस भी अगर एनर्जी एफिशिएंट हैं और अगर उनका यूज़ नहीं होना है उस टाइम उनको ऑफ किया जा सके, तो उससे भी एनर्जी सेविंग हो सकती है, काफ़ी अच्छी तरह से हो सकती है, ठीक है। अब एक इसमें एक और बात थी, एक बच्चे ने बोला रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब उसमें देखो हमारे जो जैसे घरों में होता है ना, हमारे यहाँ पे हमारा स्कूल में बड़ा नहीं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे कैंटीन्स भी होते हैं ना, कैंटीन्स भी होती हैं, ICT लैब्स भी होती है, बहुत ज़्यादा जिसमें काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जिन स्कूल्स में कैंटीन्स हैं वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या फिर लिक्विड वेस्ट हो, तो ग्रे वाटर कहते हैं, ग्रे वाटर सुना आपने, जो आप यूज़ करते हैं ना वाटर को, जैसे वॉश बेसिन यहाँ पे आपने हाथ धो लिए, अब वो पानी कहाँ जाएगा, नाली में जाएगा, फिर ड्रेन में जाएगा। अगर स्कूल कैंटीन का जो ग्रे वाटर है उसको हम स्कूल गार्डन में यूज़ कर सकें तो उससे भी हमारा जो एनर्जी का सोर्स है वो अच्छी तरह से यूज़ हो सकता है, ठीक है। और बाकी जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोग जैसे किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि बच्चे ज़्यादातर लैपटॉप्स का, मोबाइल्स का एक्सेसिव यूज़ करते हैं, बार बार रिचार्ज करते हैं, तो आप देखिए जो आपके मोबाइल्स हैं वो कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं, क्या आपको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसे हैं जो कम टाइम में चार्ज हो जाते हैं और बहुत देर तक चलते हैं, और उनका एफिशिएंट यूज़ भी, जब भी आपको मोबाइल का यूज़ करना हो जुडिशियस यूज़ करना, वरना आपको मोबाइल सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम हो सकती है जो आगे जो है आगे और बढ़ सकती है, वर्चुअल ऑटिज्म का कॉम्प्लिकेशन। तो एनर्जी को सेव करना, एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करना, हमने ये देखा होगा, आपने सिंपल देखा होगा, जब भी आप कोई फूड पैकेट लेते हैं ना, ठीक है, आप कोई ड्रिंक लीजिए या जो एनर्जी ड्रिंक है या कोई सॉफ्ट ड्रिंक है या फिर जो आप जूस वगैरह को, उस पर एक सिंबल बनाया होता है ना 3 एरोज का, वो क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है जो बार बार इस्तेमाल किए जाए। आपको पता होगा गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया ना, वो भी एनर्जी कंजप्शन को हेल्प करता है। तो ऐसे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये वाली चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है जो बार बार इस्तेमाल हो सके, यूज़ करने के बाद रिसाइकिल हो सके, उससे भी एनर्जी कंजप्शन हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। तो आपने भी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक आप चाहे घर में हैं चाहे स्कूल में हैं, तो आपने हमेशा जो है एनर्जी को सेव करना है जिस फॉर्म में भी है, ठीक है। तो उससे हमें एनर्जी एफिशिएंट जो है नेशन बन सकती है। अगर आपको पता होगा, देखिए अभी एक रिपोर्ट आई है हाल ही में कि इंडिया में पिछले साल से इस साल में
एसी का कंजप्शन 30% बढ़ गया, ठीक है ना, कंज्यूमर 30% बढ़ गए। अब एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा ना, तो वो गवर्नमेंट कहाँ से इतनी बिजली बनाएगी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी, कोल से बनाएगी, न्यूक्लियर बनाएगी, तो कैसे वो जो है लोगों के नीड्स एनर्जी के वो मीट हो पाएंगे? तो ये भी आपने देखा, आप जितना एनर्जी कंजप्शन कम करेंगे, ठीक है, रिड्यूसिंग हो जाता है एनर्जी कंजप्शन कम करना, ठीक है, उसके बाद एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस यूज़ करना, वो जब जरूरत हो तभी करना, ठीक है, वरना बेकार में नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो है देश में, हमारे स्कूलों में, हमारे घरों में एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, जुडिशियल यूज ऑफ एनर्जी, ये हमें जो है आगे चल के अच्छी जो है एनर्जी एफिशिएंट नेशन बनाएंगे।